discuss? Shall we start? Hello, sir. Yes, Yeah, yes, I'm audible. yeah. You are audible. Okay, okay. So just screen is visible Yeah, but it is not visible in full. The whole screen is not visible. now. The entire screen is not visible. It's visible. It's Visible, visible. na? Okay, okay, fine. Yes. Okay. Shubha ma'am, are you there? Yes, yes. Shubha ma'am, kindly start. Yes, sir. Yes. Good afternoon, everyone. On behalf of our esteemed institution, DGET Degree College of Arts, Commerce and Science, I, Assistant Professor Shubha Shah, IQAC member, warmly welcomes all the participants and our distinguished resource person, Mr. Harnish Dedia sir, to day 3 of the National Level Management Development Program on Excel Unleashed, Mastering Data and Automation. I'm confident that the past 2 days have been both enlightening and enriching for all of us. As we move into day 3, we have an exciting session lined up, focusing on VLOOKUP, HLOOKUP, and if functions in Excel. With so many lookup functions on the agenda today, I am looking forward to an insightful and valuable session by Mr. Harnish Dedia, sir. Without further ado, I now hand over the session to you, sir. Over to you, Harnish, sir. Yes. Yeah. Audible. Voice is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So yesterday we have just stopped at chart. So shall we go for chart part first? Then we can start with VLOOKUP, HLOOKUP, or VLOOKUP, HLOOKUP. Shall I start first? Audible? Yes, sir. Yes, sir. You Ah, can just do a recap of what was taught yesterday first, and then begin yes. with the First VLOOKUP. day we have done pass-fail formula, maximum, minimum, sum, average, pass-fail formula. First day. Then we have done some if formulas, that is if nested if formulas. Hello, sir. You're not audible. Yesterday we have completed with the sort, filter, subtotal, pivot table. Okay, that was yesterday's our session, and we have just now going to start with the chart. If you say otherwise, we can directly start with the VLOOKUP, HLOOKUP. Then we can switch on the chart as per your convenient. Okay, yesterday we have done some if formulas also. Okay, I have given one or two formulas for the practice, and page spatial etc. we have done in previous lecture. Some if formulas we have done. Okay, so shall we start with the chart, or directly shall we start with the VLOOKUP, HLOOKUP today? Start, sir. Okay, chart, may I start first? Yes. Okay, so we will complete chart within 15 to 20 minutes. Then we will go for VLOOKUP, HLOOKUP. Okay, so फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. बराबर, वी हैव गिवन वन डेटा. मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टेबल व्हाट्सअप कर दिया था. सो माइट बी यू ऑल हैव टेबल, अदरवाइज यू माइट बी क्रिएटेड द टेबल. सो इंसर्ट मेन्यू में चार्ट ऑप्शन है. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द चार्ट. वॉइस, आई थिंक सो वॉइस इज क्लियर टू ऑल.
सो इंसर्ट मेन्यू में चार्ट ऑप्शन है, इंसर्ट मेन्यू में चार्ट। अगर जो आपके पीसी पे अलग वर्जन है, डिफरेंट वर्जन है, तो लिटिल बिट ऑप्शंस विल चेंज। सो ड्यूरिंग द लाइक सेशन यू कैन टेल मी के ऑप्शंस आपके यहाँ नहीं दिख रहे हैं तो कहाँ दिख रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट चार्ट में अगर जो यहाँ पर कंपनी का नाम वगैरह मैंने हेडिंग दिया है, सपोज हियर वी हैव गिवन सम हेडिंग एज अ कंपनी नेम एक्सेट्रा, सो वी कैन मर्ज। होम मेन्यू में मर्ज ऑप्शन रहता है, होम मेन्यू में मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन रहता है, सो वी कैन गिव द हेडिंग ऑफ द कंपनी नेम वगैरह। अभी यहाँ पर जो कंपनी नेम है दैट इज नॉट माय डेटा, मुझे डेटा पे से चार्ट बनाना है। सो डेटा हम एंटायर सिलेक्ट करेंगे, मैंने जो सिलेक्ट किया है वो आपको ध्यान देना है। इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट पे जाएंगे। फर्स्ट मैं दो टाइप के चार्ट अभी बताऊंगा, 2D 3D कॉलम डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। उसके अलावा वेरियस चार्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देन यू कैन आस्क डिफरेंट क्वेरीज। ओके, सो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, डेटा सिलेक्ट करेंगे। इंसर्ट में जस्ट आप कोई भी चार्ट पे जाओगे, क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली चार्ट तो 1 सेकंड में बन जाएगा, चार्ट 1 सेकंड में बन जाएगा। अब ये चार्ट को थोड़ा सा मैं हाइट विथ रिड्यूस कर सकता हूँ, इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। जब चार्ट मेन्यू आप सिलेक्ट करते हो, देखो चार्ट पे मेरा माउस पॉइंटर है, मतलब चार्ट मैंने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपको चार्ट डिजाइन एंड फॉर्मेट मेन्यू आ जाएगा। अगर जो चार्ट पे आपने नहीं सिलेक्ट किया, देखो मैंने बाहर क्लिक किया अभी जस्ट नाउ, मैंने शीट पे क्लिक किया। मैंने ऑलवेज कहा है कि मेरा पॉइंटर, मैं जब सिखा रहा हूँ तभी स्क्रीन पे पॉइंटर कहाँ पर है वो आपको ध्यान देना है। अगर जो ये अभी दिख रहा है, मैं पॉइंटर मैंने जो सिलेक्ट है वो हटा दिया है, मैंने बाहर कर्सर रखा है, तो ऊपर जो डिजाइन लेआउट मेन्यू है, फॉर्मेट मेन्यू, वो नहीं दिखेगा। ओके, जब हम चार्ट पे है तो ही देन ओनली वी कैन सी द डिजाइन, चार्ट डिजाइन मेन्यू एंड फॉर्मेट मेन्यू। अगर जो आपका ओल्ड वर्जन है तो 3 मेन्यू यहाँ पर लास्ट में दिखेंगे आपको, चार्ट, लेआउट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू वगैरह। ओके, यहाँ पर चार्ट डिजाइन मेन्यू में जाते हैं और फर्स्ट वाला दिख रहा है कि अगर जो कोई कंपनी का चार्ट बनाते हो, कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट बनाते हो आप, तो डेटा एनालाइज करना है, डेटा आपको विजुअलाइज करना है थ्रू चार्ट, तो आपको चार्ट को टाइटल वगैरह देना जरूरी है। चार्ट टाइटल देंगे हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टाइटल देंगे। तो ये सारी चीजें जो अभी लेफ्ट साइड कॉर्नर पे दिख रही है, ये मैं 1 बाय 1 बताने जा रहा हूँ, बट उससे पहले मैं आप सभी को पूछ ले रहा हूँ कि आपका जो अभी वर्जन है, जो वर्जन पे आप अभी एक्सेल में मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सेम वर्जन है क्या सबके? एक्सेल शीट पे चार्ट डिजाइन मेन्यू दिख रहा है या ऊपर 3 मेन्यू अलग दिख रहे हैं, फॉर्मेट के बाजू में 2 मेन्यू दिख रहे हैं कि 1 मेन्यू दिख रहा है? 3 मेन्यू दिख रहे हैं। 3 मेन्यू दिख रहे हैं। कौन से 3 मेन्यू दिख रहे हैं? डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट। तो आपको लेआउट मेन्यू पे अभी जो ऑप्शन मैं सिखाने जा रहा हूँ ना, वो आपके लेआउट मेन्यू में दिखेंगे। वो ऑप्शन कहाँ दिखेंगे? लेआउट मेन्यू। सारे ऑप्शन सेम है, बट यहाँ पर 3 के 2 मेन्यू कर दिए गए हैं। तो आपको फिलहाल जो भी मैं ऑप्शन सिखा रहा हूँ, आपको लेआउट मेन्यू पे क्लिक करके वो सारे ऑप्शन ट्राई करने, जो आपको हॉरिजॉन्टली पैनल में दिखेंगे। यहाँ पर उन्होंने नए वर्जन में क्या कर दिए है, वर्टिकल पैनल में फर्स्ट में सारे ऑप्शन जो देखिए एक्सिस, आप लेआउट मेन्यू पे क्लिक कीजिए, आपको चार्ट टाइटल वगैरह वगैरह ऑप्शंस दिख रहे हैं वहां पर लाइन से? सर नहीं दिख रहे, मेरे इधर चार्ट में कॉलम, लाइन, पाई, बार ऐसा दिख रहा है। अभी आपने चार्ट बनाया क्या? चार्ट बना लिया आपने? हाँ, मैंने चार्ट बना लिया है, वो सिलेक्ट आपने क्लिक किया किया है। है, तो चार्ट पे क्लिक किया है, तो ऊपर मेन्यू बार में लास्ट में 2 मेन्यू कौन से दिख रहे हैं आपके? और मेरे इधर चार्ट, इंसर्ट में चार्ट ऑप्शन है, उधर हॉरिजॉन्टल में कॉलम, लाइन, पाई ऐसा दिख रहा है और अदर चार्ट दिख रहा है। इंसर्ट चार्ट के बाद की बात कर रहा हूं मैं। इंसर्ट चार्ट हमने बना लिया, अभी इंसर्ट मेन्यू पे नहीं क्लिक करना है, खाली चार्ट पे। चार्ट पे आपने क्लिक किया है ना, तो लास्ट में मेन्यू, मेन्यू मतलब ये व्यू वगैरह जो मेन्यू दिख रहे हैं ना, डेटा व्यू वगैरह, उसमें लास्ट में कौन से 2 मेन्यू दिख रहे हैं आपके, इसको मेन्यू कहते हैं, फॉर्मेट वगैरह। तो लास्ट में कौन से और उसके फॉर्मेट, बाद डेटा रिव्यू, व्यू, ये तीन ही है। कौन से है? डेटा रिव्यू, व्यू, और बस यही है। और मैं क्लिक मतलब किया है ना, है? मेरा इंसर्ट। हाँ, आपने चार्ट, मेरी स्क्रीन पे जैसे चार्ट दिख रहा है वो चार्ट पे क्लिक करो, चार्ट पे क्लिक करो,
तो वैसे चार्ट नहीं दिख रहा है, चार्ट टाइटल वैसा नहीं दिख रहा है, जो टेबल बनाया है वही टेबल है, उधर सिलेक्ट किया मैंने वो टेबल। सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाके कोई भी एक चार्ट पे क्लिक कीजिए, कोई भी एक चार्ट पे क्लिक कीजिए, कोई भी एक चार्ट पे 3D कॉलम डायग्राम वगैरह कोई भी एक चार्ट पे क्लिक कीजिए। ओके, हाँ क्लिक किया आपने हाँ चार्ट? अभी आया। हाँ, तो वही वही हाँ चार्ट ये बनाएंगे हम। देन वी कैन सी ऑल मेन्यूज। चार्ट पहले आपने बना लिया, अभी देखिए वहां पर कौन से मेन्यू दिख रहे हैं, क्विकली बोलिए। डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट। हाँ, तो अभी सबका ओल्ड वर्जन है आई थिंक सो। जिनका भी न्यू वर्जन है वो यहाँ पर मेरा स्क्रीन दिख रहा है वैसा दिखेगा। जिनका भी ओल्ड वर्जन है तो प्लीज ऑप्शन सेम है, ध्यान से आपको लेआउट मेन्यू पे सारे ऑप्शन दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे? फॉर्मेट के पहले जो लेआउट मेन्यू है उसमें सारे ऑप्शन दिखेंगे जो अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो इजी ऑप्शन है, जरा भी टेंशन मत लीजिए। लेआउट मेन्यू पे यहाँ पर मेरे साथ सारे ऑप्शन पहले देख लीजिए, फिर आपके पीसी पे भी ट्राई कीजिए। साथ में ट्राई करना है तो साथ में ट्राई भी कर सकते हैं। आपके इसमें लेआउट मेन्यू में चार्ट टाइटल पहले दिख रहा रहेगा, तो यहाँ पर मेरा थर्ड ऑप्शन दिख रहा है वो। तो चार्ट को टाइटल हम दे सकते हैं। जिनको भी चार्ट टाइटल पे क्लिक करना है, चार्ट टाइटल पे क्लिक करो। चार्ट में टाइटल, अबाउट टाइटल चाहिए, नन चाहिए, तो चार्ट टाइटल मतलब क्या? यहाँ पर चार्ट को आप नाम दे दीजिए। आप जो भी लिखेंगे वो पहले देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार में दिखेगा। चार्ट में एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जो भी टाइटल वगैरह आप देंगे वो पहले फॉर्मूला बार में शो करेगा। फिर आप क्लिक करिए, चार्ट के ऊपर क्लिक करिए। देखिए मैंने चार्ट के ऊपर क्लिक किया, मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। चार्ट पे क्लिक किया तो चार्ट पे वो टाइटल आ गया। ओके, अगेन मैं बता रहा हूँ, लेआउट मेन्यू में चार्ट टाइटल ऑप्शन पे आपके जाइए और चार्ट टाइटल पे जाइए। वहां पर चार्ट टाइटल पे क्लिक करोगे तो आपको चार्ट टाइटल देना है। फॉर्मूला बार में पहले वो चार्ट टाइटल दिखेगा, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे, उसके बाद आप चार्ट पे क्लिक करोगे तो चार्ट पे आएगा वो टाइटल। ओके, ये पहला ऑप्शन हो गया। क्विकली सेकंड मेन्यू पे जाते हैं हम लोग। चार्ट को टाइटल दे दिया हमने। नाउ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का टाइटल आपके पीसी पे दिखेगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का टाइटल, ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है बट सारे नाम सेम रहेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टाइटल मतलब क्या? यहाँ पर देखिए अभी मुझे हॉरिजॉन्टल टाइटल देना है, तो हॉरिजॉन्टल टाइटल एक्स एक्सिस पे मेरे पीसी पे ब्रांच है, आपके पीसी पे कुछ और दिख रहा है तो आप वो टाइटल दे सकते हैं। मेरे पीसी पे ब्रांच है तो मैंने ब्रांच दे दिया टाइटल। दिख रहा है? जो भी आप लिखोगे पहले फॉर्मूला बार में दिखेगा, फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा चार्ट पे तो वो चार्ट पे आ जाएगा। अगेन वापस से सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल टाइटल दे दिया मैंने एक्सिस टाइटल में। अभी एक्सिस टाइटल में आप वर्टिकल टाइटल में जाइए। एक्सिस टाइटल में वर्टिकल टाइटल में जाइए तो यहाँ पर सेल्स, सेल्स ये एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगेगा, बहुत इजी है बट पहले बार दिखना चाहिए कि कहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं। ओके, तो हमने सेल्स लिखा। सेल्स देखो पहले कहाँ दिख रहा है? फॉर्मूला बार में दिख रहा है, पॉइंटर पे ध्यान दीजिए और फिर आप क्लिक करोगे चार्ट पे तो चार्ट पे दिखेगा। यहाँ पर देखिए अभी चार्ट को टाइटल दिया मैंने, फिर एक्स एक्सिस को ब्रांच टाइटल दिया, वाई एक्सिस को सेल्स टाइटल दिया, दिख रहा है? तो ये हमने 3 टाइटल दे दिए। कहाँ कहाँ से टाइटल दिए? चार्ट टाइटल में, जो आपके कंप्यूटर पे फॉर्मेट के पहले जो चार्ट लेआउट मेन्यू है, लेआउट मेन्यू में चार्ट टाइटल दे दीजिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टाइटल दे दीजिए। उसके बाद आता है डेटा लेबल, तो यहाँ पर डेटा लेबल देना है। तो देखिए ऐसे हर एक पे लेबल आ जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा अलग आ रहा है, आपके पीछे भी बढ़िया सा अच्छा वाला लेबल आ रहा रहेगा। ओके, डेटा लेबल, हाँ, तो यहाँ डेटा लेबल दे सकते हैं। मैं यहाँ से रेडीमेड में से बता देता हूँ आपको डेटा लेबल क्या होता है। तो यहाँ पर डेटा लेबल कुठे गेला, ओके, तो यहाँ पर हर एक को डेटा लेबल मतलब वैल्यूज आ जाएगा, वैल्यूज के साथ आ जाएगा। अगेन देखिए डेटा टेबल मतलब वो टेबल अटैच हो जाएगा, जो आपका एक्सेल का टेबल है वो अटैच हो जाएगा। ये सब क्लिक क्लिक करके देखिए, कोई टेंशन मत लीजिए, कंप्यूटर खराब नहीं होगा। ओके, तो डेटा लेबल पे हमने क्लिक किया तो लेबल आ गया। टेबल पे नहीं चाहिए तो नन करते जाइए। प्रैक्टिस करने के बाद वापस से नन करते जाओगे तो भी चलेगा। लेबल नहीं चाहिए तो मैंने नन कर दिया। ओके, उसके बाद फिर ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन किसे कहते हैं? ग्रिड लाइन जो पीछे ग्रे लाइन है उसे ग्रिड लाइन कहते हैं, जो आपके लेआउट मेन्यू में थोड़ा सा आगे ऑप्शन दिख रहा रहेगा। तो वर्टिकल ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन मतलब क्या? ग्रे लाइन, जो पीछे ग्रे लाइन दिख रही है आपको चार्ट में, दैट इज ग्रिड लाइन। ग्राफ, ग्राफिकल जो लाइन रहती है ग्राफ के लिए, तो ये ग्रिड लाइन आप माइनर मेजर ग्रिड लाइन दे सकते हैं। लीजेंड सभी को पता है, लीजेंड किसको कहते हैं? ये जो कलर इंडिकेट कर रहा है, ये देखो राइट हैंड साइड पे कलर इंडिकेट करने वाला आ गया, जैन फेब मार्च फेब, तो मार्च अप्रैल वगैरह।
तो ये जो कलर इंडिकेट कर रहा है दैट इज लीजेंड। तो याद रखिए आपको लेआउट मेन्यू में क्या क्या ट्राई करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टाइटल, चार्ट को टाइटल देना है, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेबल्स दे सकते हैं आप, फिर टेबल अटैच कर सकते हैं आप, फिर ग्रिड लाइन दे सकते हैं, मतलब पीछे ग्रे लाइन जो दिख रही है वो। लीजेंड आपको कहाँ चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, तो यहाँ पर लीजेंड देखिए लेफ्ट में आ गया, अभी लीजेंड हमने लेफ्ट में रखा। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको दिखेगा लेआउट मेन्यू में हॉरिजॉन्टल बार में। ओके, अभी यहाँ पर एक्सिस पे जो टाइटल है, एक्सिस पे जो टाइटल है वो मुझे रिमूव कर देना है। जो आपके इसमें वो चार्ट टाइटल वाले 4-5 ऑप्शन के बाद दिखेगा, वैल्यू टेबल के बाद ये ऑप्शन दिखेगा, कौन सा वाला, ये एक्सिस टाइटल वाला। तो एक्सिस पे वर्टिकल टाइटल, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 आ गया, वापस से मुझे नहीं चाहिए तो मैं 1 2 3 4 मैंने रिमूव कर दिया। मतलब जो हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टाइटल दे रहे थे वो आपको देना है, तो शो करो, मतलब क्लिक करोगे तो वो शो हो जाएगा। ओके, शो करना है। तो यहाँ पर ब्रांच भी आ गया, 1 2 3 4 भी आ गया। अगेन क्या क्या किया हमने, लेआउट मेन्यू में ये सारे ऑप्शंस आपके जो दिख रहे हैं, चार्ट टाइटल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टाइटल, ग्रिड लाइन, लीजेंड, लीजेंड किसे कहते हैं, जो कलर इंडिकेट कर रहा है। प्लीज ये सारे ऑप्शन एक बार ट्राई कर लीजिएगा, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट याद रखने जैसा नहीं है, आप जितना जितना ट्राई करोगे उतना चेंजेस दिखते जाएगा आपको। और फिर आप फर्स्ट मेन्यू पे जो आपका डिजाइन मेन्यू है, डिजाइन मेन्यू पे आ जाइए। डिजाइन मेन्यू पे देखिए लास्ट में आपको बहुत सारे डिजाइन देख रहे हैं, ये नया वर्जन है तो न्यू वर्जन में थोड़े डिजाइन अलग है। आपके डिजाइन मेन्यू पे आ जाइए, आपने चार्ट सिलेक्ट किया है, लेआउट से पहले डिजाइन मेन्यू है, डिजाइन मेन्यू में देखिए ऐसे बहुत सारे चार्ट के अलग अलग डिजाइन दिखेंगे, तो आप डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हो, डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें आपको डिजाइन मेन्यू में रेडीमेड लेआउट वाला ऑप्शन भी दिखेगा, मतलब रेडीमेड लेआउट, मतलब यहाँ पर देखिए क्विक लेआउट है, मेरे नए वर्जन में क्विक लेआउट ऑप्शन है, आपके इसमें लेआउट करके ऑप्शन रहेगा, बराबर, लेआउट ऑप्शन, डिजाइन मेन्यू में लेआउट रहेगा ऑप्शन। तो क्विक लेआउट मतलब क्या, कि मुझे क्विकली वैल्यूज देना है, क्विकली चार्ट दिख रहा है, ये क्विक लेआउट पे सारे ऑप्शन पे ट्राई कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए। क्विक लेआउट के जो डिजाइन मेन्यू में आपका क्विक लेआउट ऑप्शन दिख रहा रहेगा, तो ये सारे ऑप्शन पे क्लिक क्लिक कर दीजिए एक बार, तो क्या होगा, रेडीमेड लेआउट आ जाएगा। जो हम अभी जाके कर रहे थे, टाइटल वगैरह दे रहे थे, ग्रिड लाइन दे रहे थे, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर रेडीमेड आ जाएंगे। लिखा सभी को, ओके। देन फॉर्मेट मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में नया कुछ नहीं है, फॉर्मेट मेन्यू मतलब वर्ड वगैरह में होता है, वही है, कलर वगैरह यू कैन चेंज, कलर एक्सेट्रा यू कैन चेंज। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट मेन्यू में आपको कोई भी कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो, चार्ट को कलर देना है, फॉन्ट कलर देना है, मतलब फॉर्मेट मेन्यू जस्ट आप देख लीजिए, अभी इतना उसकी प्रैक्टिस अभी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो ये चार्ट बनाने के लिए सिंपल ऑप्शन जो थे वो मैंने पहले आपको शो कर दिए। चार्ट डेटा टू डेटा आप बहुत कुछ इसमें एडलेस कर सकते हो, आपको मेन्यू वाइज ऑप्शन सारे पता होने चाहिए कि डिजाइन मेन्यू में क्या है, चार्ट के लेआउट्स वगैरह है, रेडीमेड लेआउट्स वगैरह है, फिर आपका जो कंप्यूटर है उसमें लेआउट मेन्यू जो दिख रहा है, लेआउट मेन्यू में क्या क्या दे सकते हो आप, चार्ट को टाइटल वगैरह जो अभी मैंने सारे ऑप्शंस बताए, लीजेंड, ग्रिड लाइन वगैरह, लेबल्स वगैरह, वो हम दे सकते हैं। और थर्ड फॉर्मेट मेन्यू है, फॉर्मेट मेन्यू में क्या कर सकते हैं हम, कलर वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने चार्ट का ऑप्शन स्टॉप किया, अभी मैं खाली पाई चार्ट बता रहा हूँ, देखिए पाई चार्ट में क्या चेंजेस है, सभी ध्यान दे दीजिए, बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं 2-3 मिनट क्वेरीज पूछने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ। फर्स्ट मैंने देखिए सिलेक्ट किया, इंसर्ट में पाई चार्ट एट अ टाइम एक ही डेटा का बनेगा। अगर जो आप डेटा सिलेक्ट करके इंसर्ट में पाई चार्ट पे जाते हैं, इंसर्ट में पाई चार्ट पे जाते हैं और क्लिक करते हैं तो पाई चार्ट बन जाएगा 1 सेकंड में, बट वो एक ही मंथ का या एक ही ब्रांच का बनेगा, एक ही मंथ का या एक ही ब्रांच का बनेगा। तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो उसको, ओके, दिख रहा है डिजाइन, वापस से इसमें टाइटल वगैरह सब सेम ही है, राइट। बट अगर जो अभी आप कहेंगे कि मुझे फरवरी मंथ का चाहिए या ब्रांच 2 का चाहिए, तो बराबर ध्यान दीजिए कि आपको कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करना पड़ता है। एक्सेल में हमें जितना भी चाहिए, आपके कीबोर्ड में एक कॉलम पहले सिलेक्ट कीजिए, बराबर से ध्यान से स्टेप सुनिए, कंट्रोल प्रेस करके जो कॉलम चाहिए वो कॉलम सिलेक्ट कीजिए। एक्सेल में
नॉट फॉर द चार्ट। सभी के लिए याद रखिए कि आपको जितना भी सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट करके इन बिटवीन कुछ और चाहिए तो कंट्रोल प्रेस करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल प्रेस करके रखना है कीबोर्ड में और दूसरी लाइन सिलेक्ट कर सकते हो, अनदर डेटा सिलेक्ट कर सकते हो। वापस से इंसर्ट में पाई चार्ट में जा रहा हूँ। देखिए मैं तो अभी क्या हो गया, ब्रांच 2 का या फरवरी का, देखिए फरवरी का डेटा आ गया, फरवरी का चार्ट आ गया, पाई चार्ट आ गया। वापस से ध्यान दीजिए, आपने यहाँ पर डेटा सिलेक्ट किया है, कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ मैं मेरे कीबोर्ड से। कंट्रोल प्रेस करने से क्या होगा, मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, जितने कॉलम चाहिए उतने ही मैं कॉलम सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर अभी मुझे मंथ और ब्रांच 2 सिलेक्ट करना था, कंट्रोल प्रेस करके मैंने सिलेक्ट किया। इंसर्ट में, चार्ट में, पाई चार्ट में जो भी आपको चार्ट चाहिए 2D 3D वगैरह चार्ट लोगे तो अभी देखिए ब्रांच 2 का खाली आया, ब्रांच 3 का चाहिए तो ब्रांच 3 खाली सिलेक्ट करूंगा। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। हेडिंग तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो नहीं चलेगा, बराबर माउस पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, आप सिलेक्ट क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग है पूरा रो या पूरा कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल प्रेस करके भी मैंने मार्च सिलेक्ट किया। पाई चार्ट के लिए वापस से बता रहा हूँ कि जितना चाहिए आपको कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करना है, देन इंसर्ट में जाके पाई चार्ट आप बनाओगे तो क्या आ गया, पाई चार्ट आ गया, लेकिन किसका आ गया, ओनली मार्च का आ गया, ओनली मार्च का आ गया। ये मेरी तरफ से चार्ट की मेन चीजें मैंने बताई। अभी आपको क्या क्वेरीज है प्लीज पूछिए अनम्यूट करके। चार्ट में आप जो अभी ट्राई कर रहे थे उसमें जो भी आपको क्वेरीज आई रहेंगी प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। चार्ट ट्राई किया अभी आपने, टाइटल वगैरह जो जो ऑप्शंस थे यहाँ पर वो ट्राई किया आपने सभी ने? एम आई ऑडिबल? हेलो? Yes, Yes, sir. yes, sir. हाँ ओके, तो चार्ट में टाइटल वगैरह, पाई चार्ट में कंट्रोल प्रेस करके पाई चार्ट सिलेक्ट करना, वो सब ट्राई किए क्या? आपको जितना Yes, चाहिए sir. सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कीजिए। एक्सेल में पर्टिकुलर डेटा सिलेक्ट करने के लिए हमें कंट्रोल प्रेस करना पड़ता है। ओके, तो जितना चाहिए उतना डेटा सिलेक्ट करने के लिए, पर्टिकुलर डेटा सिलेक्ट करने के लिए पहले एक कॉलम या एक रो सिलेक्ट कर लेंगे, देन कंट्रोल पकड़ के रखना है कीबोर्ड में, जो कंट्रोल बटन है, कंट्रोल की है, वो पकड़ के रखना है। फिर आपको जो चाहिए सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड रो प्रेस कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए वैसा डेटा, फॉर्मूला, चार्ट जो चाहिए वो आप कर सकते हो। तो ये वेरियस चार्ट आप प्रैक्टिस कीजिए, और उसमें कोई डाउट आता है तो लेक्चर के एंड में पूछ सकते हैं या तो बाद में पूछ सकते हैं। चलो, तो चार्ट में किसी को डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए, अदरवाइज विद इन 1 मिनट वी विल स्टार्ट विद द VLOOKUP। चार्ट में जिन्हें भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, कोई ऑप्शन आपके इस पे नहीं दिख रहा है। ओके, चार्ट सबने प्रैक्टिस किया? एनी डाउट? Shall we start with the VLOOKUP HLOOKUP? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो VLOOKUP HLOOKUP के लिए कोई नया डेटा नहीं आप क्रिएट करोगे तो चलेगा, कल मैंने आपको डेटा भेजा ही है। अगर जो आप फर्स्ट टेबल पे जो 2-3 कॉलम थे, नेम, सब्जेक्ट वाइज, मार्क्स, वो न्यू शीट पे कॉपी पेस्ट करते हो तो भी चलेगा। मैंने देखिए क्या किया है, जो भी 2-3 कॉलम, मैंने 3 कॉलम सिलेक्ट किए, कॉपी करके मैंने न्यू बुक पे पेस्ट किया, एकदम फ्रेश वाला डेटा ले लिया हमने, एकदम फ्रेश डेटा ले लिया है ना। VLOOKUP HLOOKUP पहले सिंपल फॉर्मूला में बताऊंगा, फिर और 2 से 3 टेबल हम लोग ट्राई करेंगे, हर एक डेटा में थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा। VLOOKUP HLOOKUP स्टार्ट कर रहा हूँ। VLOOKUP फर्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। VLOOKUP में रूल क्या है कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कॉपी कर रहा हूँ, देखिए मैंने शीट 1 पे फर्स्ट कॉलम को कॉपी किया और उसको शीट 2 पे पेस्ट कर रहा हूँ। अगेन हेडिंग भी सेम होने चाहिए, तो हेडिंग को भी मैंने सेम कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया मैंने। यहाँ तक सब लोग
कर लीजिए, यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जो भी शीट में डेटा वगैरह आपको करना है। वी लुकअप स्टार्ट किया है हमने, आपको ये ओरिजिनल डेटा एज इट इज रखना है, ये ओरिजिनल डेटा पूरा चाहिए आपके पास। वी लुकअप ऑलवेज न्यू शीट को देंगे हम लोग, वी लुकअप न्यू शीट को, मतलब वो शीट पे भी दे सकते हैं पर डेटा चेंज रहेगा। यहाँ पर वी लुकअप के लिए अभी जो मैं सिखा रहा हूँ दैट इज एंटायर डेटा, पूरा का पूरा डेटा लेना है। तो ये शीट 1 में पूरा डेटा है, एंटायर डेटा है, आप उसमें से फर्स्ट कॉलम को कॉपी पेस्ट करके रखिए शीट 2 पे और हेडिंग भी कॉपी पेस्ट कर दीजिए। सबने किया? सभी ने किया? डेटा कोई भी लो चलेगा, 3 कॉलम वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड टेबल जो भी आपने बनाए थे, डेटा कोई भी ले लीजिए आप। ओके, डेटा कोई भी ले लीजिए। यहाँ तक सभी का हो गया रेडी, तो मैं फॉर्मूला स्टार्ट कर रहा हूँ। वी लुकअप वाला फॉर्मूला हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, किसी को भी कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी देखिए, मुझे करना कुछ नहीं है वी लुकअप में, यही डेटा हमें यहाँ पर चाहिए, लेकिन कॉपी पेस्ट करके नहीं, वी लुकअप यूज करके। क्या? वी लुकअप यूज करके, और इन फ्यूचर उसमें क्या चेंज कर सकते हैं वगैरह वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कर्सर रखा मैंने, कर्सर कहाँ रखा? B2 पे रखा। फंक्शंस में जाएंगे, वी लुकअप में जाएंगे, आपके पास अगर जो पहली बार वी लुकअप नहीं दिख रहा है तो ऑल में जाके लेके आओ। कहाँ जाके लेके आएंगे? ऑल में जाके लेके आइए। और पहली बार जब मैं फॉर्मूला सिखा रहा हूँ तो प्लीज एक बार देख लीजिए, फिर आप सेकंड टाइम मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो वी लुकअप, ओके, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए सभी, वी लुकअप, ओके। अभी यहाँ पर 4 चीजें करनी है, वी लुकअप में क्या करना है हमें? 4 चीजें करनी है। तो 4 बॉक्स में क्या क्या करना है वो देखिए। लुकअप फॉर द वैल्यू, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका मीनिंग भी देखो नीचे दिखता है, आपका ये जो डायलॉग बॉक्स आया है ना उसके नीचे उसका मीनिंग भी दिखेगा, बट वो कैसे समझ में आएगा? हम प्रैक्टिकली करके। तो यहाँ लुकअप फॉर द वैल्यू मतलब ओरिजिनल डेटा पे जाऊंगा। यहाँ पर आपको मेरे माउस पॉइंटर पे शीट पे क्या हो रहा है वो प्लीज ध्यान देना है और बराबर से सुनना है, हाँ, क्योंकि ये एक से दूसरी शीट पे मैं स्विच हो रहा हूँ। तो ओरिजिनल डेटा पे जाऊंगा, उसको हमने सिलेक्ट किया, फर्स्ट कॉलम। वी लुकअप का रूल है वर्टिकल लुकअप, मतलब लेफ्ट मोस्ट कॉलम सेम होना चाहिए, लेफ्ट मोस्ट कॉलम सेम होना चाहिए। तो उसको हमने सिलेक्ट किया, F4 करके फ्रीज किया। ओके, फिर टेबल एरे, एरे मतलब एंटायर डेटा, संपूर्ण डेटा, पूरा डेटा। एरे मतलब रेंज नेम, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका मीनिंग नीचे दिख रहा है, रेंज नेम। ओके, एरे मतलब एंटायर डेटा रेंज। तो वापस से आप ओरिजिनल में जाओगे और पूरा डेटा सिलेक्ट करोगे, वापस से ओरिजिनल में जाओगे और एरे मतलब एंटायर डेटा रेंज नेम, एरे मतलब रेंज। तो कहाँ से कहाँ तक हमने सिलेक्ट किया? पूरा डेटा सिलेक्ट किया, उसको भी मैंने F4 करके फ्रीज किया। अगर जो आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो FN पकड़ के F4 करना, आपके लैपटॉप में FN फंक्शन की रहेगी, ऊपर की जो फंक्शन की है ना वो विंडो के बाजू में FN प्रेस करके करोगे तो ही वो की चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ऊपर की फंक्शन की चलाने के लिए आपको FN पकड़ के F4 करना पड़ेगा। ओके, और जो नॉर्मल डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डायरेक्ट F4 कर सकते हैं। F4 किस चीज के लिए? फ्रीज करने के लिए, लॉक करने के लिए। ऑनलाइन में ये चीजें थोड़ी सी समझना मुश्किल हो जाता है, मैं कोशिश करूंगा कि 3 बार आपको बताऊं। ओके, तो F4 फ्रीज किया। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब क्या है कि हमें कौन सी कॉलम का डेटा चाहिए। तो यहाँ पर एक्सेल में कॉलम का नाम नहीं लिखा जाता है, वी लुकअप में कॉलम नंबर लिखते हैं हम, कि डेटा सेकंड कॉलम से चाहिए, और डेटा नहीं रहेगा तो 0 या तो फॉल्स। रेंज यहाँ पर दिख रहा है लास्ट में, रेंज लुकअप, वहाँ पर 0 या तो फॉल्स लिखूंगा, ओके करूंगा तो देखो वही डेटा यहाँ पर आ गया। ओके, वही डेटा यहाँ पर आ गया। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एक सेकंड जस्ट। रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल N न्यू, कंट्रोल V पेस्ट। ओके, क्विक रिव्यू भी कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझे। फर्स्ट कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। अगेन शीट 1 में गए, फर्स्ट रो को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। ये आपको पहले से ही करके रखना है वी लुकअप यूज करने से पहले। अब हमें क्या करना है, वी लुकअप से
ये जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट शीट का डेटा है वो सेकंड शीट पे लाना है। तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे, फंक्शंस में जाएंगे, वी लुकअप यूज करेंगे, फंक्शंस में वी लुकअप ओके करेंगे। देन यहाँ पर लुकअप फॉर द वैल्यू, लुकअप फॉर द वैल्यू मतलब क्या, ओरिजिनल डेटा में जाके लेफ्ट मोस्ट कॉलम, लुकअप फॉर द वैल्यू का मीनिंग होता है फर्स्ट कॉलम। जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, नीचे डायलॉग बॉक्स में देखिए उसका मीनिंग भी लिख के आ रहा है, फर्स्ट कॉलम वगैरह दिख रहा है नीचे, नीचे मीनिंग है, लुकअप वैल्यू में देखो मीनिंग नीचे लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट कॉलम को हमने सिलेक्ट किया, F4 करके फ्रीज किया, F4 करके फ्रीज करना जरूरी है। टेबल एरे में जाएंगे, टेबल एरे में जाएंगे, वापस से शीट 1 पे गए, पूरा डेटा एंटायर डेटा हमने सिलेक्ट किया, F4 फ्रीज करेंगे, F4 फ्रीज करेंगे। और कौन सी कॉलम का डेटा चाहिए, तो यहाँ पर ABCD नहीं चलता है, नीचे बॉटम पे लिखा हुआ देखो डायलॉग बॉक्स में कि ABCD नहीं चलेगा, यहाँ पर कॉलम नंबर। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 2 दिया, यहाँ पर 0 या तो फॉल्स दिया लास्ट में, ओके कर दिया, फिर देन ड्रैग किया। अब ये मेरे सेटिंग्स की वजह से ऐसा आ रहा है बीके वगैरह, आपके पीसी में सेटिंग में कुछ चेंज रहेगा तो बाद में ये बताता हूँ मैं। ओके, तो ये कभी कभार होता है सेटिंग्स, ये बीके वगैरह ऊपर ही आएगा आपका। सेम यहाँ पर देखिए वो बीके नहीं आएगा आपके, इसमें नंबर्स आएगा खाली, ओसी और एसपी। सेकंड और थर्ड टाइम वापस से वी लुकअप रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शंस में जाएंगे, वी लुकअप ओके, फंक्शंस में जाएंगे, वी लुकअप ओके, लुकअप फॉर द वैल्यू में क्या करेंगे, ओरिजिनल डेटा में जाएंगे और फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया हमने, F4 करके फ्रीज किया, लॉक किया, F4 करना, फ्रीज करना, लॉक करना, ये सभी को समझा क्या। वी लुकअप में आप सभी को मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके बाद अपने कीबोर्ड से F4 कर रहा हूँ, फ्रीज कर रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ। ओके, रेंज लॉक करेंगे ताकि बाहर का डेटा वो एक्सेप्ट ना करे। फिर टेबल एरे में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सेकंड पे कर्सर रखेंगे, वापस से शीट 1 में ओरिजिनल डेटा पे जाएंगे, पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं सिलेक्ट करना है, एंटायर डेटा सिलेक्ट करना है और उसको भी F4 करके फ्रीज करना है। ओके, फर्स्ट कॉलम, उसके बाद एंटायर डेटा और उसके बाद कौन सी कॉलम का आंसर चाहिए, अभी हमें थर्ड कॉलम का आंसर चाहिए। और डेटा नहीं रहेगा तो 0 या तो फॉल्स बताएगा। और ड्रैग किया हमने, ओके किया, मतलब ओके कर दिया। ओके, ऑडिबल। चलो, तो सभी ने ट्राई किया क्या एक बार वी लुकअप, अभी आपके पीसी पे ट्राई किया, जिनका भी नहीं हुआ है जरा भी वो प्लीज क्वेरी पूछिए तो थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जिनका नहीं हुआ है। वी लुकअप एच लुकअप, ये फर्स्ट हेडिंग नहीं आ रहा है ना, नॉर्मल आ रहा है ना आपका। ओके, यहाँ पर शीट 1 पे जाके देखिए, चेंजेस कीजिए। अब शीट 1 पे देखो, आपको VLOOKUP का बेनिफिट क्या है वो बताने जा रहा हूँ। VLOOKUP में डेटा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट टेबल पे मैं चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली उससे कनेक्टेड बाकी जो शीट है उसमें चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने डेटा चेंज किया, ओरिजिनल में जाके चेंज करूंगा तो बाकी शीट पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल में जाके चेंज करूंगा तो बाकी शीट में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ओके, ये VLOOKUP का पहला बेनिफिट है। अभी VLOOKUP के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मेरे पास ऊपर रिलायंस का कॉल सेंटर है, उन्होंने काफी बड़ा डेटा लाया था, 50-60 कॉलम का डेटा लाया था और यहाँ पर अभी मुझे उसमें से 2-3 कॉलम ही चाहिए। क्या, काफी कॉलम का डेटा था, उसमें से मुझे क्या चाहिए, 2-3 कॉलम ही चाहिए, या तो पर्टिकुलर कॉलम ही चाहिए, पर्टिकुलर मंथ का, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, तो VLOOKUP यूज करते हैं वो। तो बड़े डेटा पे अगर जो आप कहोगे कि सर लास्ट लेक्चर में एक बार बता दीजिए, तो वो डेटा मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके रखूंगा, मतलब फाइल सेव करके रखूंगा और दूसरी पीसी पे है और आपको एक बार उस पर भी VLOOKUP बता दूंगा। बट रूल यही रहेगा, डेटा बड़ा हो या छोटा हो, जैसे सम ही रहेगा, एवरेज एवरेज रहेगा, तो VLOOKUP का रूल यही रहेगा। जो आपको रूल समझना है, मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ थर्ड कॉलम के लिए, ध्यान दीजिए। फंक्शंस में जाएंगे, VLOOKUP, फंक्शंस में जाएंगे, VLOOKUP ओके। ओके, यहाँ पर 4 चीजें करना है, ये सभी को समझा। तो फर्स्ट लुकअप फॉर द वैल्यू मतलब क्या, फर्स्ट कॉलम का डेटा लेना है,
लुकअप फॉर द वैल्यू में फर्स्ट कॉलम का डेटा लेना है, तो शीट 1 पे जाएंगे, एंटायर डेटा सॉरी फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करेंगे, F4 करके फ्रीज करेंगे। पहला क्या करना है, फर्स्ट क्या करना है, पहले क्या करना है, फर्स्ट कॉलम ओरिजिनल में जाके, ओरिजिनल डेटा में जाके फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया हमने और F4 करके फ्रीज किया, लॉक किया। यहाँ तक समझा सभी को? फिर टेबल एरे, टेबल एरे में जाएंगे, वापस से ओरिजिनल में जाएंगे, टेबल एरे में जाएंगे, अगेन ओरिजिनल में जाएंगे। सेकंड पे क्लिक करने के बाद आपको वापस से ओरिजिनल में जाना है, पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, वापस से ओरिजिनल में जाके एंटायर डेटा, फुल डेटा सिलेक्ट करना है और उसको भी आप F4 करके फ्रीज करेंगे, F4 करके फ्रीज करेंगे। फर्स्ट कॉलम को लिया, फ्रीज किया, एंटायर डेटा लिया, फ्रीज किया, और यहाँ पर अभी हमें कौन सी कॉलम का डेटा चाहिए, थर्ड कॉलम का डेटा चाहिए, और डेटा नहीं रहेगा तो 0 या तो फॉल्स, और ओके करेंगे और ड्रैग करेंगे। आपके पीसी पे ये जो डबल से कॉलम रो आया है वो नहीं दिखेगा, डोंट वरी, ओके, ये टेक्निकल सेटिंग्स की वजह से होता है। अभी मैं VLOOKUP के दूसरे टेबल बताने जा रहा हूँ, उससे पहले किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, उसके बाद थोड़ा और VLOOKUP क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, ये डेटा पहले देख लीजिए, फिर आप ये डेटा बनाइएगा और VLOOKUP प्रैक्टिस करिएगा। मैं 5 मिनट दूंगा आपको। VLOOKUP HLOOKUP ही आज अच्छे से करना है तो टाइम इनफ है। मैं ये डेटा के हिसाब से पहले आपको VLOOKUP HLOOKUP सिखा दे रहा हूँ, फॉर्मूला वही रहेगा, चेंज क्या होता है वो देख लीजिए। ये डेटा है हमारे सामने, हम एवरेज नॉर्मल जैसे निकालते हैं वैसे ही एवरेज निकालेंगे, एवरेज नॉर्मल निकालेंगे, एवरेज जैसे हम निकालते थे फर्स्ट डे वैसे ही एवरेज निकालेंगे। तीनों सब्जेक्ट का मुझे एवरेज निकालना है, या आप ऑटोमेटिक जाके निकालो या तो ऐसे निकालो, बराबर। ये एवरेज हमने नॉर्मल निकाले। अगेन मैं बता रहा हूँ, एवरेज फॉर्मूला में जाके हम जैसे निकालते थे एवरेज वैसे ही मैंने क्या किया, नॉर्मल एवरेज निकाला। ओके, मुझे ग्रेड निकालना है लेकिन VLOOKUP यूज करके। अब ये डेटा देखो जो मैंने सिलेक्ट किया वो डेटा देखो, मुझे अगर जो 0 से 34 है तो C ग्रेड चाहिए, 35 से 44 तक B ग्रेड चाहिए, 45 से 59 तक B प्लस चाहिए। अगर जो मैं ये ग्रेड इफ से निकालने जाऊं तो भी आंसर आएगा, लेकिन काफी इफ लेना पड़ेगा, इफ के अंदर इफ लेना पड़ेगा और 5 इफ हो जाएंगे, 6 कंडीशन है तो 5 इफ हो जाएंगे, जो VLOOKUP में हम 1 मिनट में कर लेंगे, VLOOKUP में हम 1 मिनट में कर लेंगे। तो अभी फॉर्मूला पे जा रहा हूँ, VLOOKUP पे सभी ध्यान दीजिए कि क्या चेंज हो रहा है। फंक्शंस में जाएंगे, VLOOKUP में जाएंगे, ओके करेंगे। VLOOKUP का रूल क्या है मैंने कहा था, बोलिए, कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम, अभी आपका नेम और सारे सब्जेक्ट के मार्क्स ये आपके लिए लेफ्ट मोस्ट कॉलम नहीं है, हमारे लिए लेफ्ट मोस्ट कॉलम है एवरेज, हमारे लिए लेफ्ट मोस्ट कॉलम है एवरेज। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग मैंने सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ डेटा चाहिए, वहां पूरा डेटा लेना था, यहाँ पर सिर्फ मुझे वैल्यू सिलेक्ट करना है। एवरेज को मैंने सिलेक्ट किया, क्यों एवरेज को लेफ्ट मोस्ट कॉलम पकड़ा हमने, क्योंकि एवरेज के हिसाब से मुझे ग्रेड निकालना है। तो VLOOKUP जब भी आप काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको डेटा समझ में आना चाहिए कि हमें किसके ऊपर से क्या निकालना है। एवरेज के हिसाब से मुझे ग्रेड निकालना है, एवरेज के हिसाब से मुझे ग्रेड निकालना है। तो ये एवरेज को सिलेक्ट किया और F4 करके फ्रीज करना जरूरी है, अभी सबको दिखा रहेगा। F4 करके मैंने फ्रीज किया, लॉक किया। टेबल एरे पे जाएंगे, टेबल एरे, एरे मतलब क्या कहा था मैंने, पूरा डेटा, तो इसको थोड़ा साइड में रख रहा हूँ। ये देखो एरे मतलब एंटायर डेटा, तो वो वाला डेटा लेफ्ट साइड का सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये एवरेज और ग्रेड वाला सिलेक्ट करेंगे। काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो 2 बार मैं बताऊंगा, बड़े उसे ध्यान दे दीजिएगा। आपके लिए रेंज एरे कौन सा है, ये वाला, इसमें भी हेडिंग हमने सिलेक्ट नहीं किया, ये क्यों है, क्योंकि इसमें से सेकंड कॉलम का आंसर चाहिए। ये जो है ना डेटा, उसमें से मुझे एवरेज के हिसाब से ग्रेड निकालना है, एवरेज के हिसाब से ग्रेड निकालना है, एवरेज के हिसाब से ग्रेड निकालना है। तो ये आपके लिए एरे हो गया, रेंज हो गया, क्योंकि इसमें से सेकंड कॉलम का आंसर चाहिए, इसमें से सेकंड कॉलम का आंसर चाहिए। उसको भी मैंने F4 करके फ्रीज किया। और यहाँ पर देखिए खाली कॉलम 2 लिखोगे, क्यों कॉलम 2 लिखोगे, क्योंकि इसमें से सेकंड कॉलम का आंसर चाहिए। ओके, कॉलम का नाम नहीं लिख सकते ABCD, यहाँ पर कॉलम नंबर लिखेंगे कि मुझे एवरेज के बाजू में ग्रेड कौन सी कॉलम में है, सेकंड कॉलम में। मैंने जो रेंज सिलेक्ट किया था एरे में, उसमें से सेकंड कॉलम का आंसर चाहिए मुझे,
और इसमें जीरो फॉल्स नहीं आएगा, ये डेटा में जीरो फॉल्स नहीं आएगा, क्योंकि जीरो या फॉल्स लिखोगे तो नॉट एप्लीकेबल आएगा। आप बोलोगे क्यों और कैसे, तो इतना ही फिलहाल याद रखिए कि पूरा डेटा लेना रहता है तो जीरो फॉल्स यूज कर सकते हैं। अगर जो मुझे खाली बोलते हैं ना आंसर चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए या जो भी, तो उसके लिए मैं जीरो फॉल्स नहीं लूंगा। ओके, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सभी ध्यान दीजिए। ये एवरेज मुझे लगता है किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज हमने डायरेक्ट निकाला और ड्रैग कर लिया। अब वी लुकअप एच लुकअप में ये डेटा में थोड़ा चेंज है, तो यहाँ पर कर्सर रखना है मुझे ग्रेड निकालने के लिए। फंक्शंस में जाएंगे, वी लुकअप में जाएंगे, ओके करेंगे। लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा है हमारे लिए? एवरेज। ओके, लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा है हमारे लिए? एवरेज है। देखिए मैंने एवरेज सिलेक्ट किया, उसको F4 करके फ्रीज किया, लॉक किया। लेफ्ट मोस्ट कॉलम मेरे लिए अभी कौन सा है? E2 से E9 तक, दैट इज माय लेफ्ट मोस्ट कॉलम। तो उसको मैंने सिलेक्ट किया, एवरेज के हिसाब से मुझे ग्रेड चाहिए, तो एवरेज को मैंने फ्रीज किया, लॉक किया। अब टेबल एरे में कर्सर रखो, सेकंड पे कर्सर रखो और वापस से डायलॉग बॉक्स को हटाया मैंने। अभी सेकंड कॉलम में क्या लिखा है बोलो? सेकंड कॉलम में टेबल एरे, एरे मतलब रेंज, एंटायर डेटा, तो पूरा डेटा सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें से मुझे ग्रेड वाला आंसर। अगर जो इधर बाजू में और एक कॉलम बनाता मैं रिमार्क वाला, पास फेल फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वगैरह, तो वो थर्ड कॉलम हो जाता ग्रेड के बाजू में, बरोबर ना? तो ऐसे मैं समझा रहा हूँ कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम, एवरेज के बाजू में ग्रेड कहाँ पर है? सेकंड कॉलम में। तो मैंने ये डेटा एंटायर रेंज सिलेक्ट किया और एवरेज के ये जो हमने सिलेक्ट किया उसमें से ग्रेड कौन से कॉलम पे है? सेकंड कॉलम में। तो कॉलम नंबर लिखेंगे, जीरो या फॉल्स यहाँ पर नहीं आएगा। ओके करेंगे और ड्रैग करेंगे। वी लुकअप मेरा सिखा के हो गया। ये फोटो स्क्रीनशॉट जो लेना है ले लीजिए और क्वेरीज पूछिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को भी क्वेरी ना आए, क्योंकि पॉइंटर वगैरह वगैरह सब दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चलो तो क्वेरीज पूछिए, अनम्यूट करके क्वेरीज पूछिए, आपके पीसी पे जो भी प्रॉब्लम्स आई रहेगी आपको। टेबल बना लो, वी लुकअप प्रैक्टिस कर लो, और कुछ क्वेरी है तो प्लीज पूछो, और क्वेरी नहीं है तो भी एटलीस्ट अनम्यूट करके बोलो कि आ गया आंसर, तो मुझे समझे कि वी लुकअप आपने ट्राई किया और आंसर सर आया। एक बार वापस से ग्रेड का बता देना। एक बार वापस से कौन सा वाला बताऊं? ये वाला? तो ग्रेड फर्स्ट का। ग्रेड का वापस से बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला जो मैंने किया था पूरा डेटा वाला, वो आपने ट्राई किया, आया क्या? यस सर, एवरेज तक आया सभी, उसके बाद ग्रेड का कैसा है? नहीं नहीं, ये एवरेज वाला नहीं, मैंने जो नई शीट पे बताया था पूरा डेटा कॉपी पेस्ट करना, वी लुकअप करना, मैंने जो हाँ फ्रेश वो आया ना, आया वी वो लुकअप, तो आया। हाँ तो उधर वापस से उधर भी एवरेज आना चाहिए क्या? नहीं नहीं, ये ग्रेड वाला वापस से वो आंसर वी लुकअप से आया क्या वो पूछ रहा हूँ। और हाँ पहले VLOOKUP से वो M2 M3 वो कॉलम आ गए, और दूसरे शीट पर भी। वेरी गुड। तो पहले वाले टेबल में किसी का नहीं आया रहेगा आंसर तो वो भी पूछ लो, बाकी सभी का आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो वापस से पूछो, ग्रेड वाला वापस से हम देखेंगे अभी। और आया तो प्लीज अनम्यूट करके बोलो कि हाँ आया, तो मुझे पता चले कि कितने लोगों का आंसर आया। आया है तो अनम्यूट करके प्लीज पूछिए, मतलब रेज हैंड कीजिए, या तो एक। सर रेंज लुकअप क्या होता है? जी, रेंज मतलब एंटायर डेटा पूरा। रेंज लुकअप। रेंज लुकअप पूछ रहे हो ना? रेंज लुकअप, आर ना, रेंज ना पूछ रहे हैं ना? यस सर। रेंज मतलब पूरा डेटा, एंटायर डेटा। मैं बता रहा हूँ वापस से उसमें आपको, अभी जो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ उसमें वापस से बताऊंगा रेंज लुकअप। और किसी का जरा भी नहीं आया, किसी पे कर रहे हैं लेकिन जरा भी नहीं आया, वैसा कोई है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। चलो आई थिंक से सभी का आया है, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट फोटो भी निकालने बोला था, सभी ने निकाल लिया रहेगा। अब यहाँ पर देखिए
एवरेज हमने निकाला, ग्रेड हमें VLOOKUP से निकालना है। एक ही बार बोलूंगा, सभी का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। ग्रेड पे हमने कर्सर रखा है, फंक्शंस में जाएंगे और VLOOKUP लेंगे, फंक्शंस में जाएंगे VLOOKUP लेंगे। ओके, तो ये डायलॉग बॉक्स को थोड़ा उठा के साइड में रखूंगा। आपके लिए लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा है अभी? एवरेज। एवरेज मतलब ये E2 वाला कॉलम आपके लिए लेफ्ट मोस्ट कॉलम है। E2 वाला जो कॉलम है वो आपके लिए लेफ्ट मोस्ट कॉलम है। उसको F4 करके फ्रीज कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन समझा सभी को? हमने क्या सिलेक्ट किया वो ध्यान देना है, मैंने क्या सिलेक्ट किया वो ध्यान देना है। एवरेज जो हमने निकाला है वो सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए E2 से लेकर E9 तक मैंने सिलेक्ट किया और उसको F4 करके फ्रीज किया, लॉक किया। टेबल एरे, वापस से इसको उठा के थोड़ा इस साइड रख रहा हूँ। एरे देखो यहाँ पर है, एरे कहाँ पर है? एवरेज और ग्रेड जो लिखा हुआ है वो हमारे लिए एरे है। क्यों वो हमारे लिए एरे? क्योंकि इसमें से सेकंड कॉलम का आंसर चाहिए। ये फर्स्ट कॉलम है, ये ग्रेड वाला सेकंड कॉलम है। इसमें से पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, इसमें से सेकंड कॉलम का आंसर चाहिए मुझे, तो उसको भी क्या करूंगा? F4 करके फ्रीज करूंगा मैं। और कौन सी कॉलम का डेटा चाहिए? एवरेज के बाजू में ग्रेड है, लेकिन कहाँ पर है? सेकंड कॉलम में। कहाँ पर है? सेकंड कॉलम में। ओके, देन ओके किया हमने और आंसर आ गया। आंसर आप चेंज करके भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, 50, 45, 35। तो देखो यहाँ पर ग्रेड चेंज हो गया, बी हो गया। अगर जो मैं ग्रेड मार्क्स चेंज कर रहा हूँ तो आपका वैल्यूज भी के हिसाब से ग्रेड आना चाहिए। एवरेज भी चेंज हो जाएगा और ग्रेड भी चेंज हो जाएगा। दिख रहा है? A+ आ गया। ओके, तो ये प्लीज ट्राई करके देखो, वैल्यू चेंज करो, आपका आंसर भी चेंज होना चाहिए। ओके, सो प्लीज ये वाला VLOOKUP अच्छे से प्रैक्टिस हो गया है तो और दो VLOOKUP के टेबल में बता रहा हूँ। ओके, ये वाला VLOOKUP अच्छे से हुआ है प्रैक्टिस। अभी सेकंड टाइम सर उधर ग्रेड के उधर है ना, हैशटैग ये नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? हैशटैग नहीं आ रहा है ना, क्योंकि आपने वहां पर हाँ नीचे 0 लिखा रहेगा। आप जब VLOOKUP कर रहे हो ना, VLOOKUP, हाँ तो ये देखो यहाँ पर कॉमा 2 के बाद कॉमा 0 है क्या आपका? तो वो 0 हटा हाँ दो, 0 हटा ओके। दीजिए। मैंने कहा ये डेटा में हमें कॉमा 0 नहीं लिखना है। ओके, कॉमा 0 हटा के फिर ड्रैग कीजिए, कॉमा 0 हटा के ड्रैग कीजिए। अभी आया? एक मिनट। ये वाले डेटा में हम पूरा डेटा नहीं ले रहे, तो कॉमा 0 नहीं आएगा। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि सर ये कॉमा 0 कब रखना है, कॉमा 0 कब नहीं रखना है। तो मैं फिलहाल इतना ही एक्सप्लेनेशन दूंगा कि जब एंटायर डेटा रहता है, पूरा डेटा, तो आपको कॉमा 0 नहीं करना रहता है और हमें खाली वैल्यूज चाहिए। आ तो गया सर। हाँ, तो इसमें डेटा में हमें कॉमा 0 नहीं रखना है। ओके, तो पूरा डेटा रहेगा तो ही कॉमा 0 आएगा। चलो अभी HLOOKUP कर लेते हैं। चलो, ये HLOOKUP के लिए हॉरिजॉन्टल डेटा है। HLOOKUP के लिए देखिए हॉरिजॉन्टल डेटा है। मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ न्यू शीट पे, ताकि आपका HLOOKUP भी हो जाए आज ही। और उसके बाद मैं फिर आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो ये HLOOKUP का डेटा है। ओके, अभी बस वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल है, H लेंगे। सेम है, VLOOKUP की जैसा ही है। फर्स्ट कॉलम की जगह फर्स्ट कॉलम को हमने की जगह फर्स्ट रो को हमने कॉपी पेस्ट किया। फर्स्ट कॉलम की जगह क्या किया मैंने? फर्स्ट रो को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। ओके, अभी वापस से शीट 1 में जाऊंगा। ओके, हेडिंग मतलब ये है हमारे लिए, हेडिंग को कॉपी किया, पेस्ट किया, हेडिंग कॉपी पेस्ट किया। पहले एक बार देख लो, सेकंड टाइम चाहिए तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो या तो फिर पूछो क्वेरीज। पहले एक बार देख लीजिए। बस वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल डेटा चलेगा। अब यहाँ पर कर्सर रखा हमने, फंक्शंस में जाएंगे। ओके, और HLOOKUP लेंगे। आपके पास VLOOKUP HLOOKUP पहली बार नहीं है तो ऑल में जाके लेके आना पड़ेगा। ऑल में जाके आपको फंक्शन लेके आना पड़ेगा। HLOOKUP लिया हमने, ओके किया। सभी लोग एक बार मेरी स्क्रीन पे ध्यान से देख लीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। लुकअप फॉर द वैल्यू मतलब कहाँ जाएंगे? ओरिजिनल डेटा में जाएंगे और फर्स्ट कॉलम की जगह अभी क्या करेंगे? फर्स्ट रो सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट कॉलम की जगह फर्स्ट रो सिलेक्ट किया, दिख रहा है मैंने? फर्स्ट कॉलम की जगह फर्स्ट रो सिलेक्ट किया है मैंने और F4 करके
फ्रीज किया है, लॉक किया है मैंने। अभी टेबल एरे, एरे मतलब क्या, पूरा डेटा, एंटायर रेंज। तो वापस से आप सेकंड पे कर्सर रखिए, वी लुकअप में सेकंड पे कर्सर रखना है, और वापस से आप शीट 1 में जाएंगे, पूरा डेटा, एंटायर डेटा, फुल डेटा। ओके, रेंज मतलब क्या, पूरा डेटा, रेंज मतलब एंटायर डेटा, उसको भी F4 करके फ्रीज किया, और यहाँ पर कॉलम की जगह सेकंड रो का डेटा चाहिए, और 0 नहीं तो फॉल्स, 2 एंड 0 नहीं तो फॉल्स, और ड्रैग करो, देखो यही आ गया सब वापस से। ओके, ये यहाँ पर आ गया। वो हेडिंग मेरे लैपटॉप की सेटिंग की वजह से आ रहा है, रिपीट 10 डेज वगैरह लैपटॉप की सेटिंग्स की वजह से आ रहा है। यहाँ पर देखो वापस से रिपीट कर रहा हूँ एच लुकअप, सभी ध्यान दे दीजिए, एच लुकअप रिपीट कर रहा हूँ। ये वाला जो डेटा है, ये वाला डेटा, वही मुझे यहाँ पर न्यू शीट पे चाहिए। तो यहाँ पर कर्सर रखा मैंने, फंक्शंस में जाएंगे, एच लुकअप लेंगे, ओके करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, 4 बॉक्स आ गए, चार बॉक्स में वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, शीट 1 पे जाएंगे, ओरिजिनल डेटा में जाएंगे, वहां फर्स्ट कॉलम था, यहाँ पर फर्स्ट रो पे हॉरिजॉन्टल, आपने एच लुकअप सिलेक्ट किया है तो हॉरिजॉन्टली डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। F4 फ्रीज किया हमने। फिर टेबल एरे में क्या करेंगे, टेबल एरे पे सेकंड पे कर्सर रखेंगे, और शीट 1 में जाएंगे, और पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे, पूरा डेटा मतलब एंटायर डेटा। ओके, उसको भी मैंने F4 करके फ्रीज किया, लॉक किया। ओके, देखो अभी यहाँ पर पूरा डेटा फ्रीज करने गया तो हुआ नहीं। ओके, शीट 1 पे जाऊंगा, पूरा डेटा सिलेक्ट किया, उसको F4 करके फ्रीज किया। कभी कभार आपका सिलेक्शन बराबर नहीं हुआ, F4 फ्रीज बराबर नहीं हुआ, तो वापस से डिलीट करके वापस से प्रैक्टिस करो। ओके, यहाँ पर देखो थर्ड रो का डेटा चाहिए मुझे, और 0 नहीं तो फॉल्स आएगा, और ओके किया, और ड्रैग किया। अभी चेंज कहाँ करूंगा, ओरिजिनल में। चेंज कहाँ करूंगा मैं, देखो ओरिजिनल में चेंज कर रहा हूँ, दिख रहा है सभी को, मैंने ओरिजिनल में चेंज किया, ओरिजिनल में मैंने चेंज किया, तो उससे लिंक जो भी शीट थी वो शीट पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, उससे लिंक जो भी शीट थी उस पर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ये एच लुकअप था। यहाँ पर किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछिए एच लुकअप में, जिन्हें भी क्वेरी है अनम्यूट करके पूछिए। सर एच लुकअप कहाँ से लेना है, वो दिखता नहीं और उधर। जाके देखो, वापस से बता रहा हूँ, कोई भी फॉर्मूला नहीं रहेगा आपके पास, यहाँ पर कर्सर रखा, फंक्शंस में जाएंगे, और कोई भी फॉर्मूला नहीं रहेगा ना, तो यहाँ पर ऑल में जाके लेके आना पड़ेगा, दिख रहा है, मोस्ट रिसेंटली यूज के ऊपर ऑल रहेगा, उधर क्लिक करो, मोस्ट रिसेंटली यूज पे ऑल में जाओ, मोस्ट रिसेंटली यूज में ऑल में जाओ, और यहाँ पर फिर आपको फंक्शंस दिखेंगे, एच करो, एच, तो एच वाले फंक्शन पे क्लिक क्लिक करते जाओ, एच लुकअप पे पहुंच जाओगे आप, एच एच करते जाओ, एच लुकअप पे पहुंच जाओगे आप, ऑल में जाके एच लुकअप। मिल गया सर। ओके, एक बार यूज करोगे तो वो कहाँ आ जाएगा, मोस्ट रिसेंटली यूज में आ जाएगा, एक बार यूज करोगे तो मोस्ट रिसेंटली यूज में आ जाएगा। अभी लुकअप फॉर द वैल्यू मतलब कहाँ जाएंगे हम, ओरिजिनल में जाएंगे, पूरा डेटा। ओके, यहाँ पर कर्सर रखा मैंने, फंक्शंस में गए हम, एच लुकअप, हाँ एक बार यूज किया तो मोस्ट रिसेंटली यूज में आ जाएगा, मोस्ट रिसेंटली यूज में आ जाएगा एच लुकअप। ओके, कहाँ जाएंगे, ओरिजिनल में जाएंगे, फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे, F4, टेबल एरे मतलब ओरिजिनल में जाएंगे, पूरा डेटा, टेबल एरे मतलब ओरिजिनल में जाके पूरा डेटा, और यहाँ पर थर्ड रो का डेटा चाहिए, और 0 नहीं तो फॉल्स, क्योंकि ये पूरा डेटा ले रहे हैं हम लोग, तो 0 नहीं तो फॉल्स आएगा ही आएगा। तो ये वी लुकअप, एच लुकअप हो गया। अभी किसी को कुछ क्वेरीज है तो अनम्यूट करके पूछे, मैं और एक वी लुकअप सिखा रहा हूँ जो शायद आपके पास टेबल नहीं रहेगा, तो आप बना लीजिएगा, डोंट वरी, 5 मिनट ही लगेंगे, बाद में बनाइएगा, मैं खाली चेंजेस बता रहा हूँ कि क्या चेंज हो रहा है। शायद आपके पास भी दिया हूँ टेबल, लेकिन ये एवरेज ग्रेड वाला हो गया। तब तक किसी को कुछ क्वेरीज है तो पूछ लीजिए, मैं टेबल ओपन कर रहा हूँ।
किसी को भी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज पूछ लीजिए। अनम्यूट करके किसी को भी क्वेरीज है तो प्लीज पूछ लीजिए। मुझे और एक VLOOKUP थोड़ा सा एक एग्जांपल देना है। आज आप लोगों ने बहुत कम बोला है, मैंने ही ज्यादा बोला है ऐसा लग रहा है। कल इंटरेक्टिव लेक्चर था, आज ऐसा लग रहा है किसी को नहीं समझा। आज का लेक्चर शायद किसी को नहीं समझा। सर सब कुछ किया है, समझ रहे हैं। पक्का समझा? यस सर। ऑनलाइन लेक्चर में ऑनलाइन लेक्चर में क्या प्रॉब्लम होता है कि सामने वालों को समझा के नहीं समझा, बस वही मन में टेंशन रहता है कि समझा के नहीं समझा, समझा के नहीं। कब में किसी को कुछ डाउट? इन्होंने टेबल ही नहीं बनाया बच्चों ने, और टेबल बताना था। नो प्रॉब्लम। चार्ट, VLOOKUP, HLOOKUP, इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए। मैं टेबल तो दूंगा ही आपको बनाने के लिए, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी, मैं व्हाट्सअप करता हूँ। ओके, आप लोग ट्राई कीजिएगा VLOOKUP, HLOOKUP वाला टेबल, और फिर इसमें क्वेरी है तो कल हम लोग क्लियर कर देंगे। मतलब कल हम एक 5 मिनट्स VLOOKUP, HLOOKUP का नया टेबल रिवाइज करेंगे, सेम फॉर्मूला बट थोड़ा सा चेंज, देन वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। ओके, सो जिन्हें भी कुछ डाउट है प्लीज पूछ लीजिए VLOOKUP, HLOOKUP में। VLOOKUP, HLOOKUP में recap on charts. चार्ट रिपीट करूं? हाँ, एक जस्ट क्विक रिकैप, बिकॉज कल हम लोग VLOOKUP, HLOOKUP तो वैसे भी करने वाले हैं, तो आज अगर एक चार्ट का एक क्विक रिकैप कर दे तो। चार्ट का डेटा दिख रहा है सभी को मेरे पीसी पे? डेटा हमने सिलेक्ट किया, इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट। ओके, चार्ट में आपको जो डायग्राम चाहिए आप डायग्राम बना सकते हो। ओके, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम वगैरह। हाँ, चार्ट में आपको जैसा चाहिए। हम लोग नॉर्मली 2D बार डायग्राम, 3D बार डायग्राम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो विजिबल रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, सो जनरली हम लोग ये टाइटल वगैरह देना जरूरी है। तो यहाँ पर आपके पीसी पे ओल्ड वर्जन है, तो ओल्ड वर्जन में क्या आ जाएगा? चार्ट डिजाइन, डिजाइन के बाजू में लेआउट मेन्यू आ जाएगा। डिजाइन के बाजू में क्या आ जाएगा? लेआउट मेन्यू आ जाएगा। तो सभी को आज अगर जो चार्ट का प्रैक्टिस कर रहे हो, भले ही बहुत इजी है बट एक्चुअल काम यही होता है। एक्स एक्सिस को टाइटल देना, वाई एक्सिस को टाइटल देना, चार्ट को टाइटल देना, लीजेंड देना, ग्रिड लाइन देना वगैरह। हाँ, तो एक दो ऑप्शन वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं। चार्ट टाइटल पे जाएंगे, अबाउट टाइटल। चार्ट में आप जो भी टाइटल दोगे तो वो पहले दिखेगा कहाँ पर? फॉर्मूला बार में। पहले दिखेगा कहाँ हमें? फॉर्मूला बार में। फिर आप चार्ट पे क्लिक करोगे, चार्ट पे क्लिक करोगे तो वो चार्ट पे दिखेगा। बस यहाँ पर कर्सर कहाँ रख रहे हैं हम, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पर देखिए, वापस से मैं गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के टाइटल पे गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टाइटल पे गया, हॉरिजॉन्टल टाइटल, वर्टिकल टाइटल आपके पीसी पे दिख रहा रहेगा, हॉरिजॉन्टल टाइटल, वर्टिकल टाइटल। तो हॉरिजॉन्टल टाइटल ये लेआउट मेन्यू में है। आपके पीसी पे लेआउट मेन्यू में ये सारे टाइटल्स वगैरह है। तो यहाँ पर समझो मैंने मंथ दिया है तो मैंने मंथ रखा, तो यहाँ पर मंथ रखा तो देखिए नीचे टाइटल आ गया मंथ। ओके, वापस से लेआउट मेन्यू में जाइए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के टाइटल पे जाइए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टाइटल दे दीजिए। यहाँ पर सेल्स है तो आपने सेल्स दे दिया। जो भी आप लिखोगे पहले कहाँ दिखेगा? फॉर्मूला बार में दिखेगा, और फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके चार्ट पे दिखेगा। अगर जो चार्ट के बाहर क्लिक किया हुआ है तो आपको वो मेन्यू ऊपर के दिखेंगे नहीं। चार्ट पे क्लिक करना जरूरी है। ओके, टेक्निकल चीजें थोड़ी थोड़ी समझना है आपको कि क्या करना है। ओके, कभी कभार हमें सब पता रहता है लेकिन हमारा सिलेक्ट नहीं किया हमने, कर्सर वहां नहीं रखा है तो भी प्रॉब्लम आती है। ओके, तो वो केस में अभी आप जब सीख रहे हो तब प्रैक्टिस करते वक्त डाउट्स पूछो। ओके, चार्ट को टाइटल वगैरह दिया हमने। क्विक लेआउट आपके
पीसी पे लेआउट मेन्यू के बाजू में डिजाइन मेन्यू में क्विक लेआउट है। क्विक लेआउट मतलब देखिए ऐसे क्विक लेआउट आ जाएंगे। क्विक लेआउट मतलब रेडीमेड लेआउट। रेडीमेड लेआउट में क्या आ जाएगा, चार्ट को टाइटल देना है, नंबर देना है वगैरह, वो सब आ जाएगा आपका। ओके, उसके बाद ये रेडीमेड डिजाइन है। मेरा थोड़ा ये वर्जन चेंज है, तो यहाँ पर अलग अलग डिजाइन आपके, इसमें कलर अलग अलग दिखेंगे डिजाइन मेन्यू में। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। स्विच रो कॉलम, स्विच कर सकते हैं। रो कॉलम देखिए स्विच हो रहा है, स्विच हो रहा है, मंथ और ब्रांच स्विच हो रहा है। ओके, तो ये स्विच करके देख सकते हैं। जो आपके इसमें एकदम लेफ्ट में पहला ऑप्शन दिखेगा, डिजाइन मेन्यू में स्विच रो कॉलम का पहला ऑप्शन दिखेगा आपके पीसी पे। ओके, उसके बाद चेंज चार्ट टाइप। मुझे चार्ट टाइप ये पसंद नहीं है, तो चार्ट टाइप चेंज कर सकता हूँ। चार्ट टाइप देखिए इतने सारे टाइप के चार्ट है, मुझे जो टाइप का चार्ट चाहिए मैंने चार्ट टाइप चेंज किया, तो चार्ट टाइप चेंज कर सकता हूँ। ओके, ये भी आपके पीसी पे पहला ऑप्शन दिखेगा, डिजाइन मेन्यू में पहला ऑप्शन दिखेगा। चार्ट टाइप चेंज करना है, कॉलम डायग्राम, बार डायग्राम, 3D डायग्राम, जैसा चाहिए चार्ट टाइप आपने चेंज किया। फिर लेआउट मेन्यू में आपने टाइटल वगैरह दिया, और फॉर्मेट मेन्यू में क्या है, खाली आप बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकते हो। ओके, देखो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वगैरह मैंने चेंज किया। अभी एक एक को अलग कलर देना है, तो आपको एक पे क्लिक करना है, तो उससे सिमिलर सारे को आप कलर चेंज कर सकते हो। ये कलर वाले ऑप्शन तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अलग ही लुक मिलेगा। कलर यहाँ से देखो चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह के ऑप्शन है जो वर्ड में वगैरह जनरली हम लोग देखते हैं, सीखते हैं वगैरह। तो ये कलर वाले ऑप्शन है, फॉर्मेट मेन्यू में कलर वाले ऑप्शन है। अगर जो मैंने चार्ट पे क्लिक किया है तो ये ऑप्शन दिखेंगे। टेक्स्ट वगैरह पे क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ मैं, दिख रहा है टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। और यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ तो बड़ा ना बैकग्राउंड कलर, और ये जो अलग अलग है इंडिकेटर उसका कलर चेंज कर सकता हूँ। पाई चार्ट खाली एक है, अलग है, मैंने कहा था पाई चार्ट में बड़ा आपको जितना चाहिए उतना कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करना है, जितना चाहिए उतना कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करना है। इंसर्ट में पाई चार्ट, और फिर आप कोई भी पार्ट चार्ट पे क्लिक कीजिए तो आपको वही डेटा का चार्ट दिखेगा, ब्रांच 2 का, फरवरी का, मार्च का। पाई चार्ट एट अ टाइम एक ही डेटा का दिखेगा, एक ब्रांच का सारे मंथ का, या तो एक मंथ का सारे ब्रांच का डेटा दिखेगा। पाई चार्ट में भी देखिए अच्छे अच्छे लेआउट वाले ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हो वगैरह। ओके, उसको भी टाइटल वगैरह दे सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप। ओके, चार्ट टाइटल वगैरह दे सकते हो। ओके, हर एक पे लेबल वगैरह थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। ओके, तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। पाई चार्ट, बस पाई चार्ट में याद क्या रखना है आपको कि एट अ टाइम एक ही डेटा का आएगा, या आपको जितना चाहिए उतना कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करना है, और फिर इंसर्ट में पाई चार्ट पे जाके पाई चार्ट बनाना है। दोनों चार्ट बना सकते हो आप। अभी तो नए वर्जन में बहुत सारे टाइप के चार्ट आते हैं। ओके, तो अलग अलग टाइप के डिजाइन करके चार्ट बना सकते हो आप। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारा चार्ट वाला ऑप्शन हुआ। ओके, चार्ट वाला ऑप्शन हुआ। चार्ट में कुछ क्वेरी है तो पूछ लीजिए। वी लुकअप एच लुकअप में किसी को भी क्वेरी है तो क्विकली पूछ सकते हो। अभी वी लुकअप एच लुकअप में किसी को भी क्वेरी है, आपके पीसी पे करते वक्त कोई ऑप्शन नहीं दिखा है तो प्लीज पूछिए। आपके पीसी पे ट्राई करते वक्त कोई ऑप्शन नहीं दिखा है तो प्लीज आस्क। वी लुकअप एच लुकअप समझा सभी को? वी लुकअप एच लुकअप मैंने दो डेटा आज दिए आपको, वी लुकअप वाले दो और एच लुकअप का एक, तो उसमें प्लीज रिपीट प्रैक्टिस करिएगा। ओके, ये वाला डेटा VLOOKUP HLOOKUP सभी ने प्रैक्टिस करना है कंपलसरी। ये वाला डेटा VLOOKUP HLOOKUP सभी ने प्रैक्टिस करना है कंपलसरी। यहाँ पर मैं वापस से F2 करके एडिट सेल कर रहा हूँ। ये VLOOKUP का फॉर्मूला का फोटो निकाल लो, ट्राई कीजिए। नहीं समझा तो कल प्लीज वापस से पूछिए। और ऐसे ही दो टेबल दूंगा मैं, थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा VLOOKUP में। तो VLOOKUP के दो टेबल जो मैं यहाँ पर असाइनमेंट के तौर पर स्टूडेंट्स को देता हूँ, वो मैं आज आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ श्वेता मैम को। तो मैम आपको व्हाट्सअप या मेल कर देंगे। वो दोनों टेबल आपको VLOOKUP यूज करके ट्राई करने, थोड़ा थोड़ा चेंज है, फॉर्मूला वही रहेगा, इक्वल टू VLOOKUP। देखिए मैं वापस से 1 सेकंड रिपीट कर रहा हूँ, फिर एंड करता हूँ सेशन। VLOOKUP इक्वल टू VLOOKUP, पहले क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम को प्रेफरेंस देना है। अब लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा है वो हमें पहचानना है।
फिर एंटायर डेटा, रेंज मतलब क्या, एंटायर डेटा, पूरा डेटा, और हमें कौन सी कॉलम का आंसर चाहिए, कौन सी कॉलम का आंसर चाहिए, बस इतना सिंपल वीलुकअप याद रखिए। वीलुकअप का रूल क्या है, इक्वल टू वीलुकअप, वीलुकअप में 3 चीजें हम कर रहे हैं, पहले लेफ्ट मोस्ट कॉलम, कॉमा, पूरा डेटा, एंटायर डेटा, रेंज नेम, एंटायर डेटा, रेंज नेम, और फिर मुझे कौन सी कॉलम का आंसर चाहिए, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम का, जो डेटा आपने सिलेक्ट किया है उसमें से, हाँ ओके, जो डेटा आपने सिलेक्ट किया है उसमें से कौन सी कॉलम का आपको आंसर चाहिए। कल 2 टेबल करने के बाद आपको वीलुकअप एकदम बोलते हैं ना बाय हार्ट याद रह जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, और आज के आज करोगे तो कल भूल जाओगे, उससे अच्छा है कि कल नया ट्राई करना, तो ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। तो 2 दिन प्रैक्टिस कंटिन्यूस किया हुआ है तो याद भी रह जाता है। मैं स्टॉप कर रहा हूँ लेक्चर, किसी को भी कुछ क्वेरीज है तो पूछिए, ओवर टू मैम। Dear participants, any queries, you can please unmute and ask. So I hope no queries. You have taught so nicely. So everyone has understood. मुझे डर लग रहा है आज, आई हैव फियर कि सभी को समझा कि नहीं समझा, नहीं बिकॉज़ नहीं, सो एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक उतना समझ में नहीं आएगा। तो डेफिनेटली आपने कल जो शीट शेयर किया था वो मैंने सब पार्टिसिपेंट्स को मेल किया था। मैम मैं एक So, उसमें 2 टेबल है, मैं एक्सेल का एक प्रिंट आउट का फोटो भेज रहा हूँ, मेरे पास पीसी पे बना हुआ नहीं है बट प्रिंट आउट रहेगा, तो आई एम सेंडिंग टू वीलुकअप टेबल, वो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा सभी को। sure, हाँ, sure, sir. I will do that. थैंक यू। Yes. Thank you, sir. Sir, I would request you to kindly stop sharing. Thank you, sir. So this was the end of day 3. And I know there are so many things to learn in Excel. The more we learn, the more we explore. So a request to all of you to kindly to practice on daily basis to excel in this particular Microsoft Excel. Thanks a lot, participants, for joining today also. Thank you so much, Hanesh sir, for your wonderful session. Thank you, our IQC coordinator, Assistant Professor Tina Kotian ma'am. And also would like to thank our college for organizing such wonderful event so that we can learn Excel and make our life much easier. I would request all the participants to kindly switch on their cameras so that I can capture the moment for my documentation purpose. Participants, I'm not able to get the gallery mode, Tina ma'am. Could you please unpin yourself, Tina ma'am? Is there any option of yeah. Thank you so much. It's done. Everyone, please switch on their cameras. Thank you so much, participants, for joining. One announcement that tomorrow, on occasion of Mahavir Jayanti, there is a holiday and the lecture won't be conducted tomorrow. So we will meet day after tomorrow on 11th of April. So please note that tomorrow, 10th of April, we won't be having a session. It will be on 11th April. The 4th day of the session will be on 11th of April. One more request to all of you to kindly fill the feedback forms on daily basis. This is going to help us to know what improvement we can do, as well as this is going to help us to issue you the certificate of this particular MDP. So the link will be shared to you by Tina ma'am. Request to all of you to kindly fill the same on daily basis. We would require the feedback for all the 5 days.
Thank you so much. Thank you, ma'am. So, ma'am, the last you, session sir. will be Saturday, 12. Yes, the last session will be on Saturday, right? So tomorrow we are taking a gap. We are taking as it's a holiday. So tomorrow there will be no session. Day after tomorrow we all will meet. And also Thank the you. recordings will be shared after Yes. the session. All the Yes. 5 So days. recording all the 5 after all the 5 days, the recording will be shared so that it will be helpful for you to practice it again and again. Okay. Thanks a lot, everyone. Take care. Have a great day. Thank you, ma'am. Thank you, bye.